Today we will learn about river and different processes of rivers and different landforms that are formed by river action. Let's start our video. First is river processes. Now what is a river process or what are river processes? River processes are important because these processes shape the earth surface to form various landforms. अब ज़मीन को डिफरेंट शेप्स में ढालने में रिवर प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और लैंडस्केपिंग जो है वो रिवर प्रोसेसेस की या रिवर एक्शन की वजह से होती है. दैट्स वाई रिवर एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिवर परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. First, processes of erosion, then processes of transportation and then processes of deposition. फर्स्ट प्रोसेस वो जिसमें ये लैंडफॉर्म्स को ब्रेक डाउन करता है. सेकंड प्रोसेस जिसमें वो ब्रोकन मटेरियल को अपने साथ लेके जाता है. और थर्ड में डेपोजिशन यानी वो अपने साथ जो मटेरियल लेके जाता है उसको ज़मीन पे बिछाने का या डिपॉजिट करने का काम करता है. अच्छा, अब इरोजन जो है जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि द रिवर इज डिवाइडेड इन 3 स्टेजेस: अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स. सेम लाइक दिस ये प्रोसेसेस जो हैं ये भी कोर्स के साथ रिलेटेड हैं. जैसे अपर कोर्स में इरोजन का प्रोसेस ज़्यादा होता है. ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अपर और लोअर कोर्स में और मिडल कोर्स तक भी जाता है. अपर से स्टार्ट होता है, लोअर एंड मिडल तक जाता है. और लेकिन डेपोजिशन का प्रोसेस जो है ये सिर्फ मिडल कोर्स और लोअर कोर्स में होता है. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेसेस इन डिटेल. अगर हम इस चार्ट को देखें तो रिवर प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन प्रोसेसेस. And erosion processes are abrasion, hydraulic action, solution and attrition. Then transportation processes are traction, saltation, suspension and solution. And deposition, river deposit load on river bed in different stages. When it lose energy or it reach to an area of shallow water, large boulders and stones get deposited first. Small and fine river load move further and form delta. डेपोजिशन का प्रोसेस मोस्टली जाके लास्ट स्टेज या लोअर कोर्स में होता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेसेस होते हैं जो उस मटेरियल को साथ लेके आते हैं जो एंड पे आके डिपॉजिट होता है. नाउ यू कैन सी द चार्ट फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स. River processes are divided in 3 processes: erosion, transportation and deposition processes. In erosion, corrosion, attrition, solution and hydraulic action are the river actions. Then saltation, traction, suspension and solution are transportation processes. And the landform that are formed during the process of erosion are potholes, rapids, waterfalls and interlocking spots, while the deposition of landforms are delta, floodplains, levees and braided channels. आपको ये बहुत अच्छे से याद करना चाहिए और बहुत अच्छे से इसको समझना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर इज द flowing water, fresh flowing water, and the river start from a source and it end up to a sea or ocean which is known as mouth of the river. And this whole journey is known as river course or drainage basin. And during this journey the river involved in different actions. It break down the soil, it transport the broken particles and it deposit the material to form new landforms. And the action that are related to erosion are corrosion, attrition, solution and hydraulic action, then saltation, traction, suspension, solution. And different landforms you should keep in mind different landforms of different courses. Now we will discuss these processes in detail.
First is the process of erosion. In process of erosion, abrasion is the mechanical scraping of river bed and rocks by rock fragments carried by river. It causes breakdown river bed and sides. जब मैंने आपको पहले बताया था कि अपर कोर्स में रिवर चूंकि माउंटेन से फ्लो कर रहा होता है तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और जब स्पीड तेज़ होती है तो ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डर्स को भी साथ ले आता है, और जब वो बोल्डर्स ज़मीन से टकराते हैं जिसके ऊपर पानी फ्लो कर रहा होता है या रिवर फ्लो कर रहा होता है, तो उनके टकराने की वजह से वो एक स्क्रैपिंग का काम करते हैं कि ज़मीन की खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। ज़मीन रिवर बेड को भी और उसके साइड्स को भी खुरचना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को एब्रेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ रिवर बेड एंड साइड बिकॉज ऑफ द रॉक्स दैट आर ब्रॉट बाय द रिवर इज नोन एज एब्रेशन। देन hydraulic action. When powerful flowing water enter in cracks and lines and further break down river bed and sides. अब जब एब्रेशन यानी स्क्रैपिंग का काम हो रहा होता है तो उसमें रिवर बेड पे डिफरेंट क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब वो फास्ट फ्लोइंग वाटर उन क्रैक्स के अंदर एंटर होता है, और चूंकि वो वीक हो चुके होते हैं, वहाँ से सॉइल वीक हो चुकी होती है, तो वो उस सॉइल को भी अपने साथ बहाना शुरू कर देता है, साथ उसका फ्लो करता है, जिसको हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। देन सोल्यूशन, जो सॉल्युबल रॉक्स होती हैं, वो रॉक्स जो कि पानी में सॉल्व होती हैं या डिज़ोल्व हो सकती हैं, वो डिज़ोल्व होकर पानी के साथ फ्लो करना शुरू करती हैं, जिसको सोल्यूशन कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज एट्रेशन। एट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें एब्रेशन यानी फर्स्ट प्रोसेस में जो रॉक्स ब्रेक डाउन होके आई हैं, जब वो आपस में टकरा के फर्दर राउंड होती रहती हैं, उस प्रोसेस को एट्रेशन कहते हैं। सो एट्रेशन इज व्हेन रॉक पार्टिकल्स knock each other and make round and small rocks. हमें रिवर में अक्सर नज़र आते हैं ना, स्मॉल राउंड शेप स्टोन्स हमें नज़र आते हैं, रॉक्स नज़र आती हैं। बेसिकली वो प्रोसेस एट्रेशन होता है। सो इरोजन के प्रोसेस में 4 एक्शन है। फर्स्ट एब्रेशन, जिसमें ज़मीन की खुदाई का काम हो रहा है। उस खुदाई के काम के दौरान जो रॉक्स वीक हो गई हैं, उसमें जब फास्ट फ्लोइंग वाटर एंटर होके उन रॉक्स को भी साथ फ्लो करके ले जाता है, वो हाइड्रोलिक एक्शन है। सोल्यूशन, वो पार्टिकल्स जो कि पानी के अंदर सॉल्व हो जाते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो पानी में डिज़ोल्व होके वहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, ये सोल्यूशन है। एट्रेशन, जब वो ब्रोकन रॉक से एक दूसरे से टकरा के ग्राइंडिंग का काम करती हैं और एक राउंड शेप बनाती हैं, उसको एट्रेशन कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। In process of transportation, 4 actions are involved: traction, saltation, suspension and solution. First, traction. The way heavy river road rolls and slide against the riverbed, some fragments are so heavy that they move only in flood condition. अब ट्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल साइज से लार्ज साइज तक के बोल्डर्स या रॉक पार्टिकल्स को ये मूव करा रहा होता है, और उसमें जो सबसे हैवी लोड होता है वो सबसे पहले रुक जाता है, और वो सिर्फ तब मूव करता है जब पानी का फ्लो बहुत तेज होता है या फ्लड कंडीशंस होती हैं। इसको ट्रैक्शन कहते हैं। मीन द रोलिंग ऑफ हैवी मटेरियल ओनली ऑन फ्लड कंडीशन। Then saltation. The way river loads such as coarse sand and pebbles hop and bounce along riverbed, they move along water according to force and create hops and bounces. अब जो सबसे हैवियर लोड है उससे स्मॉल साइज का लोड जब वाटर फ्लो के साथ साथ मूव करता है, जितना वाटर फ्लो है उतनी तेजी से मूव कर रहा है। जब वाटर फ्लो कम हो गया तो वो होप्स और बाउंस बना के रुक जाएगा। दिस इज नोन एज साल्टेशन। देन सस्पेंशन. मोस्ट रिवर कैरी देयर लोड एज सस्पेंशन. इन दिस प्रोसेस फाइन सिल्ट एंड क्ले फ्लो अलोंग रिवर. ये वही सोल्यूशन से रिलेटेड है कि वो पार्टिकल्स जो पानी के अंदर अब्सॉर्ब हो गए, डिजॉल्व हो गए, वो पानी के साथ फ्लो करते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली दीज आर द फाइन पार्टिकल्स दैट कैन डिजॉल्व. एंड लास्ट वन इज सोल्यूशन. Soluble mineral dissolved in river water and flow along river as solution.
सो ट्रांसपोर्टेशन के 4 प्रोसेसेस। ट्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक्शन है जिसमें हैवी लोड सिर्फ मूव करता है जब वाटर फ्लो बहुत तेज होता है। साल्टेशन, जिसमें हैवी से स्मॉल पेबल्स जो मूव करते हैं और वो डिफरेंट शेप्स, होप्स और बाउंसेस बनाते रहते हैं। सस्पेंशन, वो लोड जो कि रिवर के साथ फाइन पार्टिकल जो रिवर के साथ बह रहे होते हैं, यानी मिट्टी के फाइन ज़रात जो पानी के साथ बह रहे होते हैं। एंड सोल्यूशन, वो मटेरियल जो पानी के साथ डिजॉल्व होकर सॉल्युबल मिनरल्स बना के पानी के साथ फ्लो कर रहा होता है, यानी डिफरेंट सॉल्ट्स जो मूव कर रहे होते हैं रिवर वाटर के साथ, उसको सोल्यूशन कहते हैं। Now you can see the diagram. You can see the diagram of erosion. First, attrition. Attrition is the scraping, then solution, abrasion and hydraulic action. Then transportation, you can see suspension, fine light material is carried along the river. Traction, large boulders and rocks are rolled against the river bed. Solution, minerals are dissolved in water, this is a chemical change. And saltation, small pebbles and stones are bounced along the river bed. So traction और saltation सिर्फ river bed पे हो रही होती है, जबकि suspension और solution जो है वो water surface पे हो रहा होता है। अब थर्ड प्रोसेस डेपोजिशन की भी यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं कि डेपोजिशन मोस्टली अपने लोअर कोर्स में स्टार्ट होता है जब रिवर की एनर्जी कम हो चुकी होती है, तो ये अपने साथ लाया हुआ मटेरियल डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ वी विल डिस्कस रिवर फीचर्स। जब ये सारे प्रोसेसेस होते हैं तो इन प्रोसेसेस से डिफरेंट फीचर्स रिलेटेड हैं। Different features formed during the action of erosion, transportation and deposition are confluence, interlocking spurs, waterfalls, meanders and oxbow lakes, floodplains and deltas. These are the features that are formed by river actions. First of all, we will discuss a confluence. A confluence occurs when two or more flowing bodies of water join together to form a single channel. Confluence occur where a tributary join a large river, where two rivers join to create a third, or where two separate channels of a river having formed an island rejoin joint stream. जहाँ दो स्ट्रीम्स एक दूसरे से मिलती हैं या फिर एक स्ट्रीम आके मेन रिवर से मिलती है, उसको उस पॉइंट को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, जहाँ एक स्मॉल स्ट्रीम आके मेन स्ट्रीम को, या जहाँ दो अलग अलग स्ट्रीम एक जगह पे ज्वाइन होती हैं, उसको कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर इज अ प्रोजेक्टिंग रिज दैट एक्सटेंड अल्टरनेटली फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द wall of a V-shaped valley. As the river erodes, the landscape is the upper course. It winds and hands to avoid areas of hard rock. अब इंटरलॉकिंग स्पर्स होते हैं जब किसी हार्ड रॉक के एरिया के सराउंड में पानी बह के नेक्स्ट आके फिर एक दूसरे को ज्वाइन कर लेता है, उसको इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं। मीन जब हार्ड रॉक्स को इरोड करने के बजाय वाटर उसकी सराउंडिंग में अपने लिए एक वे फाइंड आउट करता है, उसको इंटरलॉकिंग स्पर्स कहा जाता है। देन वाटरफॉल. Waterfall is a river or other body of water steep fall over a rocky ledge into a plunge pool below. जब किसी रॉक के ऊपर से वर्टिकली पानी फ्लो करना शुरू करता है, उसको वाटरफॉल कहते हैं। और वाटरफॉल को कास्केड्स भी कहा जाता है। और वाटरफॉल मोस्टली इरोजन के प्रोसेस में बनती हैं। वाटरफॉल एक ऐसा फीचर है जो अपर कोर्स में बनता है, और वाटरफॉल की फॉर्मेशन के लिए हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का एक बेंड मौजूद होना ज़रूरी है। जब हार्ड रॉक्स सॉफ्टर रॉक्स के ऊपर फॉर्म होती है और सॉफ्ट रॉक्स इरोड होना शुरू करती हैं, तो एक प्लंज पूल बनना शुरू होता है। और जब वाटर वहाँ उसके ऊपर एक वर्टिकली एक फ्लो बना लेता है, उसको वाटरफॉल कहा जाता है। और ऑन अ लॉन्ग टाइम ये वाटरफॉल जो है ये ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि हार्ड रॉक के जब बेसिक लेयर ख़त्म हो जाती है तो ये भी कोलैप्स कर जाती है। मेंडर्स. अब जब वाटर फ्लो कर रहा होता है तो ये डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म में से गुजरता है,
कहीं इसको सॉफ्ट रॉक्स मिलती हैं, कहीं हार्ड रॉक्स मिलती हैं, कहीं ये प्लेन फील्ड में जाता है। सो डिफरेंट एरियाज में वाटर का फ्लो भी डिफरेंट होता है। अब इस प्रोसेस में ये जो डिफरेंट बेंड्स, एक सांप की तरह से, जो अगर आपने कभी स्नेक को देखा हो तो वो ऐसे ही बेंड होके मूव कर रहा होता है, तो वो जो बेंड्स होते हैं, रिवर जो चैनल बनाता है अप एंड डाउन, उनको मेंडर्स कहा जाता है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ रेगुलर sinus curves in a river or other water course channel. It produces as water course erode the sediments of an outer concave bank, cut bank, and deposit sediments on an inner convex bank, which is typically a point bar. अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके दो पॉइंट हैं, एक कटिंग बार है, एक डेपोजिटिंग बार है। यानी एक साइड पे वाटर का फ्लो जहाँ तेज होता है वहाँ वो कटिंग कर रहा होता है, जबकि दूसरी साइड पे वो डिपोजिशन कर रहा होता है, यानी मटेरियल को बिछा रहा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में बार एंड स्वेल टोपोग्राफी आप देख सकते हैं कि वो एरिया जहाँ वाटर का फ्लो तेज होता है वहाँ ये कटिंग कर रहा होता है, और दूसरी साइड पे ये डिपॉजिट कर रहा होता है मटेरियल को। So meander are curves of the river. Now oxbow lakes. ऑक्सबो लेक्स बेसिकली ऑक्सबो इसका नाम इसलिए है कि ये देखने में जैसे ऑक्स के पाँव या आप खुर कह सकते हैं उस जैसा लगता है शेप इसकी देखने में, दैट्स वाई इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ये बेसिकली मियांडर से ही रिलेटेड एक फीचर है कि जब मियांडर बहुत डीप हो जाता है, जब रिवर कर्व्स में फ्लो कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस में जब रिवर बहुत डीप हो जाता है तो वो उस इतने लंबे कर्व को लेने के बजाय क्या करता है, एक शॉर्ट वे को फाइंड आउट करता है, और वो मियांडर जो है वो कट हो जाता है, उसका वो एक जो कर्व होता है वो कट हो जाता है, और उससे वो लेक बनती है जिसको ऑक्सबो लेक्स कहा जाता है। An oxbow lake start out as a curve or meander in a river. A lake form as the river finds a different shorter course. The meander became an oxbow lake along the side of the river. Oxbow lakes usually form in flat, low-lying plains close to where the river empties into another body of water. ये तकरीबन जहाँ इसका मिडल कोर्स ख़त्म हो रहा होता है वहाँ ऑक्सबो लेक्स बनती हैं। और एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट करती हूँ कि रिवर जब फ्लो करता है तो वो मियांडर्स बनाता है, और जब मियांडर बहुत डीप हो जाता है तो रिवर एक शॉर्ट कोर्स लेता है और उसका वो एरिया कट हो जाता है, और कट होने के बाद वो एक लेक फॉर्म करता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। देन फ्लड प्लेन्स. Flood plain is a generally flat area of land next to a river or stream. It stretches from the bank of the river to the outer edge of the valley. A floodplain consists of two parts. Floodplains are formed when a meander erodes sideways as it travels downstream. When a river breaks its bank, it is behind layers of alluvium silt. Now you can see the normal condition of the river कि meanders हैं, बट जब फ्लड सीजन आता है तो ये रिवर ओवरफ्लो कर जाता है और अपने साथ लाई हुई सिल्ट और फाइन पार्टिकल को अपने सराउंडिंग में डिपॉजिट करता है, जिससे फ्लड प्लेन्स बनते हैं। एंड डेल्टास. A river delta is a landform shaped like a triangle created by the deposition of sediment that is carried by a river and enters slower moving or stagnant water. अब पहले हमने डिस्कस किया था जहाँ हमने अपर लोअर एंड मिडिल कोर्स में कि लोअर कोर्स बिल्कुल आप इसको दरिया की बढ़ापा कह सकते हैं कि उसमें इसकी एनर्जी कम हो गई है, इसके अंदर वाटर कम हो गया, तो इसमें क्या ये डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसमें इसके अंदर एनर्जी इतनी कम हो चुकी होती है कि ये सबसे ईजीएस्ट वे को तलाश करता है जहाँ से ये फ्लो कर सके, और इसके दौरान ये डिफरेंट चैनल में स्प्लिट हो जाता है, जिन चैनल्स को डेल्टा कहा जाता है क्योंकि ये डेल्टा शेप फॉर्म करता है। और ये बेसिकली रिवर के सी और लेक में एंटर होने से पहले का लैंडफॉर्म है जो रिवर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे अपने माउथ पे बनाता है। द रिवर स्प्लिट इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज. This causes bars or islands of sediments to build in the middle of the main channel. River spread out and slows down and it approaches the sea.
Deposition is therefore encouraged as the hydraulic radius drop and the river became less efficient. The biggest sediments are dropped first and the finest further away. इसमें जो जो कि एनर्जी बहुत कम हो चुकी होती है रिवर की, तो ये जो अपने साथ लाया हुआ मटेरियल होता है उसमें जो लार्ज साइज का मटेरियल होता है उसको सबसे पहले ये डिपॉजिट करता है, और जैसे जैसे आगे जाता है वो फाइन पार्टिकल्स में और साइज उसका छोटा होता जाता है. Now you can see different river features. In upper course, steep-sided V-shaped valleys, interlocking spurs, rapids, waterfall, and gorges are formed. In middle course, meanders and oxbow lakes are formed, and in lower levees, braids and deltas are formed. Now you can see the levee. लीवी वो लैंडफॉर्म होता है जो रिवर की साइड पे जो मटेरियल डिपॉजिट होता रहता है उससे एक आप एक नेचुरल दीवार कह सकते हैं उसको, जो खुद ब खुद बनती है और वो रिवर की फ्लडिंग को रोकती है. ये नेचुरल एक ब्लॉकेज होती है. और डेल्टाज तो आपको पता है लास्ट स्टेज पे आके जो एक ये स्प्लिट इनटू डिफरेंट चैनल्स विच आर नोन एज डेल्टाज. एंड ब्रेड्स क्या होती हैं, जब ये डिफरेंट चैनल डिफरेंट डेल्टाज जब आपस में मिलके एक ब्रेडेड शेप बनाती हैं उसको ब्रेड्स कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ द रिवर. Like everything else, everything has a positive and negative impact. So river is positive impacts of the river can be used as a source of transportation. For farming it is helpful because it provides cheap source of irrigation and provide fertile soil to grow crops. It can be used to produce electricity and it is a environment friendly source. Then provide different type of fish as a food supply, and it is also used for in our daily life. And negative impacts of river are related with floods, like floods, loss of farmland, loss of property and loss of life. Rivers never go reverse, so try to live like a river. Forget your past and focus on your future. Always be positive. And my message is to stop polluting rivers. Thank you.